ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਉਸੇ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 30 ਤੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਰਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਰਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਲੇ 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 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ। ਕਰੋ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕਰੋ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ। ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ। ਕਾਸ਼ ਇਸਰਾਈਲ ਬੋਲੇ, ਕਾਸ਼ ਇਸਰਾਈਲ ਬੋਲੇ, ਮੋਦੀ ਉਸਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ, ਮੋਦੀ ਉਸਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ। ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ। ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਾਸ਼ ਆਖਣ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਰੇ, ਕਾਸ਼ ਆਖਣ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਰੇ। ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ। ਕਾਸ਼ ਆਖਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਾਸ਼ ਆਖਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੋ ਰੱਖਦੇ ਖੌਫ ਯਹੋਵਾ, ਜੋ ਰੱਖਦੇ ਖੌਫ ਯਹੋਵਾ। ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਉੱਠਿਆ ਕੁਝ 6:30 ਵਜੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਫੇਰ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਸਿਫ ਸਦੀਕ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹਾਊਸ ਆਫ ਗਲੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड। जी मुझे इजाजत, मैंने इजाजत है मैं बोला? जी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। हाँ जी थैंक यू। सब तो पहले मैं पास्टर
ਜੋਨੀ ਫਰਨੈਂਡਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਗਲੋਰੀ ਚਰਚ ਸਾਈਪਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਚ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖਨੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਵਚਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੂਵਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ तमाम कलिसियावां च जरूरत है बोलण दी क्योंकि बहुत सारी कलिसियावां च असीं जाणदे बुझदे होए इहदे तो किनारा करने आ पर्दापोशी करने आ इहदा जिक्र नहीं करदे इहनूं बयान नहीं करदे इहनूं नहीं दसदे इहदे तो इसी कतराने आ या खौफ खाने और कलाम कहंदा है खुदा दा वचन कहंदा है कि बुज़दिल खुदा दी बादशाही च खुदा दे राज दे विच नहीं जा सकदा ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਤੀਨ ਫਸਟ ਕਿੰਗਸ ਉਹਦੇ 19 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ 3 ਆਇਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਜਿਹੜੀ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਰਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਰਦੂ ਚ ਪੜਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਚ ਹੀ ਪੜਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈਗੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏ 19 बाब चैप्टर 19 उदी फर्स्ट 3 वर्सेस पहला सलातीन फर्स्ट किंग्स और अखीयाब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था एलिया खुदा दा नबी है और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया ईजबल को बताया ईजबल द स्पिरिट ऑफ जेजबल ईजबल दी रूह इस रूह नूं समझण दी अज कलीसियावां दे विच जरूरत है जैजबल दी स्पिरिट की है ईजबल को बताया सो ईजबल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करें जब उसने ये सुना तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बीर सभा में जो यहूदा का है आया अगे इहदे नाल मैं दूजा एक हवाला पढ़ांगा मुकाशफा द बुक ऑफ रेवलेशन द लास्ट बुक ऑफ द न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल इहदा सेकंड चैप्टर और उदी सेकंड चैप्टर दी 19th to 22nd वर्स 19 ਤੋਂ 22 ਆਇਤ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਔਰ ਇਹ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇਸੀਆਂ रूहानी तौर ते इसी सारे इस चर्च ਦਾ हिस्सा ਵਾਂ लिखा है मैं तेरे कामों को और तेरी मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूं और ये भी कि तेरे पिछले काम पहलों से ज्यादा हैं पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत ईजबल को अपने अंदर रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हराम का
कारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूं और जो उसके साथ जिना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा ना करेंगे तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूं। ते मेरे भैणों भरावो, जेड़ा अज खुदावंद दे कलाम विच जिस रूह दे बारे च जिक्र है, ईजबल दी रूह ए अज कलीसियावां नूं तंग कर रही है, कलीसियावां दे अंदर मौजूद है। अज हर ईमान दे अंदर ए रूह मौजूद है। थवातीरा दी कलीसिया नूं लिखिया जा रहा है। थवातीरा जेड़ा है, जेड़ी कलीसिया दा नाम इत्थे लिता गया, थवातीरा दा मतलब की है? तुसी साइप्रस विच रहंदे हो, साइप्रस हो गया, माल्टा हो गया, सिसली हो गया। एक वक्त सी इहदे च बहुत सारे जेड़े 5 जजीरे सन, ये सारे तुर्की दे अंडर आंदे सन और किसी हद तक यूनान दे अंडर आंदे सन। इहदी बड़ी तारीख है और एक कलीसियावां इत्थे तक फैलियां होईयां सन। तुसी अज जिस इलाके च बैठे हो, इन्हां इलाकियां च इस थवातीरा दी कलीसिया दा बड़ा असर सी, बड़ा अमल दखल सी। और इस गल नूं समझो, थवातीरा दा मतलब है दायमी कुर्बानी या मुसलसल लगातार नॉन स्टॉप ऑफरिंग। ते ए रूहानी तौर ते सानू उन्हां ईमानदारां दी याद करांदा है जेड़े मुसलसल दुआ और रोजे च रहिंदे ने, क्योंकि थवातीरा दा मतलब ही है मुसलसल दुआ करन वाले, मुसलसल खुदा नू अपनी महिमा पेश करन वाले। लेकिन इहदे बावजूद रूहानी तौर ते सानू यह गल नजर आंदी है कि अज चाहे बहुत सारी कलीसियावां ऐसियां ने जड़ियां मुसलसल खुदा दी हजूरी च ने, मुसलसल खुदा दे हजूर दुआ कर दियां ने, बड़ा महिमा उदी कर दियां ने, सिताइश कर दियां ने, तो भी ईजबल दी रूह तो आजाद नहीं ने। इहदे बावजूद इन्हां कलीसियावां दे विच अडल्टरी और रूहानी नापाकी और जिनाकारी सरेआम होंदी सी और सारे लोग जानदे बुझदे होए भी खामोश रहंदे सन और कोई उहदे खिलाफ आवाज नहीं चुकदा सी। और मुकाशफा 21 बाब विच लिखा है कि बुज़दिल खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। सानू किंज खुदा दी मर्जी पूरी करनी है, लेकिन उस मर्जी नू पूरी करन तो पहले सानू ए जानन दी जरूरत है कि ईजबल दी रूह की है। जदों इसी ईजबल दी रूह कलीसियावां दे विच गल करने आ ते साडे ज़हन च एक ऐसी रूह आंदी है जेड़ी जिनाकारी और जेड़ी अडल्टरी और जेड़ी बड़े जिस्मानी और जिनसी गुनाह या लस्ट दी बदरू साडे ज़हन च आंदी है। लेकिन मैं तुहानू यह दसना चाहना कि ए ईजबल दी बदरू जेड़ी अज कलीसियावां नू और हर शख्स नू जकड़े होए है, इहदे तो कहीं ज्यादा है। इहदे अंदर बहुत सारे गुनाह शामिल ने। बाइबल इहदे बारे च की कहंदी है? तकरीबन हर ईमानदार, तकरीबन हर मसीही जेड़ा बाइबल नू जानदा है, ओ समझदा है, उन्हें पता है, ओ इहदे बारे च जानदा है। लेकिन मुकाशफा जेड़ा दूसरा बाब इसी पढ़िया है थवातीरा दी कलीसिया दे ताल्लुक नाल, इहदी खूबसूरत तस्वीर सानू पेश करदा है कि एक ऐसी बदरू है, एक ऐसी बुरी रूह है जेड़ी हर मर्द और हर औरत विच पाई जा सकती है। और इहदे तो ज्यादा खतरा ईमानदारां नू है जेड़े मसीह दे नाल चलदे ने, उन्हां दे ए ज्यादा बदरू अटैक करदी है। ए सोच, ए ख्याल जेड़ा है इंसान नू ज्यादा अटैक करदा है। और कई मरतबा बल्कि ज्यादातर जेड़ी कलीसियावां ने नापाकी और गुमराही दे विच गिर जांदियां ने। ईजबल दी रूह जिनाकारी नहीं बल्कि एदे तो वध के वे साडी सोच उते तक नहीं जा सकती जिथे तक ए ईमानदारां नू और मसीहां नू गुमराह करदी है, यानी रास्ते तो हटांदी है। सिर्फ जिनाकारी या जिनसी बेरा रवि या लस्ट या अडल्टरी इदा सिर्फ एक साइड है, इदे बहुत सारे पहलू ने
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਏ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰੂਹ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਔਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪਸੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਖੁਦ ਨੁਮਾਈ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਈਗੋ ਦੀ ਬਦਰੂ, ਅਨਾ ਦੀ ਬਦਰੂ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦਰੂ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਬਦਰੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਔਰ ਖਿਆਲ ਔਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਈਜ਼ਬਲ ਦੀ ਬਦਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਰੂਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੂਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਲਫ ਈਗੋ, ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੇਜ਼, ਸੈਲਫ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਸੈਲਫ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਿਰਸ ਦੀ, ਲਸਟ ਦੀ ਬਦਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲਬਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂਟਾਈਸਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਂਝਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਯਾਦ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਾ ਹੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰੱਖੋ ਜੈਸਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯਸੂ का भी था। इसी खुदावन यसू मसीह ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਦੋਂ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਇਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸੀ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਲਈਏ? ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ਬਲ ਦੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰੂਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਬਲ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬੜੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸੀ ਬੜੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਇਸੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਸੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸੀ ਬੜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸੀ ਬੜਾ ਚਰਚ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇਸੀ ਇਸ ਬਦਰੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਕਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੂਹ ਦਾ, ਈਜ਼ਬਲ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਰੂਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਰੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗੋ, ਦੌੜ ਜਾਓ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੁਮਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਈਜ਼ਬਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਈਜ਼ਬਲ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਫਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਓ ਉਹਦੇ 6ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੇ 18ਵੇਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਸੇ ਭਾਗੋ, ਰਨ ਅਵੇ ਫਰਮ ਲਸਟ, ਲਸਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਬਦਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਆਦਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਾਮਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਦਾ ਵੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਨਾ ਡੀਪ ਮੈਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਈਜ਼ਬਲ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੌੜੋ, ਨਸ ਜਾਓ, ਛੱਡ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੋਸਫ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਪੋਤੀਫਾਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਉਹ ਦੌੜਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਪੜਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਪੜਾ ਵਹੀਂ ਛੋੜ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰੂਹ ਤੋਂ ਭਾਗੋ, ਦੌੜੋ, ਰਨ ਅਵੇ। ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕੀ ਸਮਝਨੇ ਆ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਬ ਆਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ऐसी आफतां और मुसीबतां ने जिन्हां तो लोग दौड़दे ने, बचदे ने। सानू इन्हां ख्यालां तो, इन्हां सोचां तो बचण दी जरूरत है। क्यों? क्योंकि याद रखो, इसी जिस्म इसी बॉडी रखने इसी कुछ भी करिए, इसी फ्लैश इसी जिस्म और जिस्म जड़ा है इनू बाइबल कहती है फानी है। ए जिस्म रूहानी जिंदगी दे खिलाफ ख्वाहिश करदा है और रूह जड़ी है ओ खुदा दे हजूर पवित्र होने की कोशिश करदी है। लेकिन ए जड़ी इजबल दी रूह है साडी रूह नू कंटेमिनेटेड करदी है, गंदा कर दी है, नापाक कर दी है कि इसी खुदा दे कम ना आ सकिए, खुदा जोगे ना रहिए। इस रूह ते किंज इसी काबू आ सकने इसी इनू किंज कंट्रोल कर सकने हैं, तो किंज बच सकने कलाम कहता है कि जिस्म की ख्वाहिश से भागो। क्यों? जिस्म की ख्वाहिश जड़ी है, विश ऑफ द लस्ट जड़ी है, वो गुनाह नू जन्म देंदी है। और जदों गुनाह वध जाता है तो सानू खुदा दा वचन दसदा है कि वो मौत पैदा करता है। इत्थे जिस्मानी मौत नहीं, जिस्म फना है, इन्हें मरना ही मरना है। ए कॉर्नल है, साडी बॉडी कॉर्नल है, इन्हें मरना ही मरना है। लेकिन जड़ी मौत दा कलाम वचन सानू याद करांदा है वो हमेशा दी मौत है। और ओ मौत नापाकी दे गुनाह और नापाकी दे ख्याल पैदा होने दे नाल शुरू होंदी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी गुनाह दिलों पैदा होता है। मैं कहना गुनाह अखां तो पैदा होता है। सब तो पहले गुनाह अख तो पैदा होता है, अख तो गल शुरू होती है। इसी वचन च वेखने अम्मा हवा ने वेख्या, उथों अख तो गल शुरू हुई। फिर जिस्म दे अंदर दाखिल होने का रास्ता जिहड़ा है ओ साडी अख है। फिर उहदे दिल च उस गुनाह ने जन्म लिता कि देखने में खुशनुमा और खाने में लजीज है। और पैदाइश ही जेनेसिस उदे चौथे बाब विच लिखा है कि अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना ठहरेगा, और अगर भला ना करे तो देख गुनाह दरवाजा पर दुबका बैठा है। दरवाजा साडी अख है जड़ा साडे दिल दे अंदर गुनाह नू पैदा करदा है। अगर इसी देखण नू कंट्रोल कर लईए ते इसी हर चीज नू, इस बदरू नू भी कंट्रोल कर सकने आ। क्यों? जदों इसी वेखने ते साडे ज़हन दे विच मेमोरी डेवलप होंदी है, ख्याल पैदा होंदा है, और वो ख्याल साडे अंदर हसरत और हिर्स यानी विश और लस्ट नू पैदा करदा है और फिर साडे दिल नू बदल देंदा है। कलाम विच लिखिया है कि सुलेमान सोलोमन बिन दाऊद जड़ा सन ऑफ डेविड उदे बारे च लिखा है उदा दिल बदल गया। अगर इब्तदा ची स्टार्ट दे विच इनू कंट्रोल कर लिता जाए ते नौबत अगे नहीं वधदी। दाऊद ने क्यों गुनाह कीता? क्यों खुदा दी रूह ओदे तो दूर हो गई? ज़बूर 51 दे विच लिखा है, साम 51 उदे विच लिखा है, दाऊद कहंदा है खुदावंद अपनी रूह को मुझसे जुदा ना कर। उदी रूह क्यों जुदा हो गई? इसलिए कि उन्हें अपनी अख नू कंट्रोल नहीं किया। उन्हें की कीता सी? बत्सबा नू वेख्या। लेकिन सिर्फ वेखने च कोई हर्ज नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है उन्हें उन्हें वेख्या और फिर वेख्या और फिर वेख्या और वेखदा रहा और फिर आखिर गुनाह ने जन्म लिता और उस गुनाह दे बायस कई अमवात होइयां। बत्सबा दा शौहर मर गया, दाऊद दा बेटा मर गया, दाऊद दे अपने घर दे अंदरों, उहदे अपने खानदान दे अंदरों, उहदे परिवार दे अंदरों उहदे खिलाफ बगावत और रेबेलियन निकली। अख दा गुनाह। इस वास्ते याद रखो कि गुनाह दिल च जन्मा नहीं लियांदा, पहले अख तो स्टार्ट होंदा है। सिर्फ एक बार वेखण नाल इसी कई दफा देखण दे गुनाह दे बायस इस रूह नू, इस इजबल दी रूह नू अपने अंदर जन्म देने आ जड़ी साडे अस्ते मौत और रुसवाई कलंक दा बायस बन सकदी है। यही वजह है कि यसू ने, जीसस ने, प्रभु ने की किया? अपनी आंख की हिफाजत कर। उन्हें यह नहीं किया कि अगर तेरी अख तेनू ठोकर खिलांदी है ते दिल नू कढ़ के सुट दे। उन्हें क्या जे अख ठोकर खिलांदी है ते अख नू कढ़ के सुट दे, यानी अपनी नजर नू कंट्रोल कर।
अगर किसी ने किसी औरत पर बुरी निगाह एक बारी पै जाना कोई वड्डी गल नहीं है, लेकिन जो बार बार देखना ए बुरी निगाह है। देखने च कोई खराबी नहीं है, लेकिन ए असूल जड़ा है सिर्फ मर्दां ते नहीं औरतां ते भी अप्लाई होंदा है। और यही वजह है कि ईजबल दी रूह सानू कंट्रोल कर लेंदी है। ए कंट्रोल दी रूह है, ए हसरत दी रूह है, ए हिर्स दी रूह है, ए एक लस्ट दी रूह है, एक कंट्रोलिंग रूह है जिहड़ी सानू कंट्रोल कर रही है और साडे अंदर मेमोरी डिवेलप कर दी है। ਜਦੋਂ इसी देख लेंगे मैमरी डिवेलप हो जाती है, फिर इसी चीज़ों कंपेयर करने बड़े मरतबा औरतां अपने शोहरां नूं कंपेयर कर रही होंदियां ने और शोहर अपनी बीवियां नूं कंपेयर कर रहे होंदे ने। लेकिन दाऊद कहता है कि मेरी रूह की हिफाजत कर, मेरी आत्मा की हिफाजत कर, मैं अपने आप नूं कंट्रोल करना। एक खुदा दा खादम कहता है मैं कई साल अपने आप नूं प्रैक्टिस कीती है कि मैं चीज़ां नूं ना देखा ताकि मैं दाऊद की तरह बार बार देखण दा गुनाह ना करा। वो कहना है कि मैं अपने आप नूं ट्रेनिंग एंड दी कि मैं हर चीज नूं देख के नजर परे करना, प्रैक्टिस करना कि तारी मेरी आदत बन जावे ताकि फिर मैं गुनाह नूं भी ना देख सका। इस तो अलावा जी ईजबल दी रूह है और मुकाबले दी रूह है, ए हसद दी रूह है, जेलसी दी रूह है, गरूर दी रूह है, खुदी दी रूह है, खुद नूं कुछ समझण दी रूह है। इंसान होंदे होए ऐसी इस रूह का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन तो भी ए रूह ए आत्मा कितनी भी पावरफुल होए, सानू कितना भी कंट्रोल करे, ए खुदा दी पाक आत्मा का मुकाबला नहीं कर सकती। ए उदे मुकाबले च बड़ी वीक और बड़ी कमजोर है। इसी देखने कि जदों एलिया उन्हें ईजबल दे सारे पुजारियां नूं मार छड़िया ते ईजबल दे अंदर हसद पैदा होया, उहदे अंदर जेलसी आई, उहदे अंदर मुकाबला आया, उहदे अंदर गरूर पैदा होया ते उन्हें इनू एलिया नूं मारन दी कोशिश की थी। लेकिन सानू इमसाल प्रोवर्ब्स 16 बाब और उदी 20 आयत च खुदा दा वचन मिलता है, पाक प्रभु दा वचन मिलता है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई को देखेगा। दाऊद कहना है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। खुद खुदा ने यशुआ नू एक आके शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो, तब तुझे खूब कामयाबी की राह विक्ट्री मिलेगी। खुदा दे रूह दी ताबेदारी इसी ईजबल दे रूह दी खिलाफ खड़े होने दे वास्ते कर सकने हैं। एलिया ने की कीता, एलिया ने तौबा दी मुनादी की थी, लेकिन इस रूह ने मुखालफत की थी, रास्तबाजी दी। एलिया पवित्र जिंदगी दे बारे च लोकां नूं कहंदा है, लेकिन ए जड़ी आत्मा है ए तौबा तो रिपेंटेंस तो नफरत कर दी है, हसद कर दी है। एलिया खुदा ने हजूर आजादी दी, विक्ट्री दी, लिबर्टी दी मुनादी करदा है, लेकिन ए रूह जड़ी है कंट्रोलिंग है क्योंकि ए अपनी खुदी दे अंदर रहंदी है। एलिया हम्बल होण नूं कहंदा है, लेकिन ए रूह अपने अंदर एक ईगो पैदा कर लैंदी है कि जदों तक मैं एलिया नूं मार ना छड़ा। अज साडे अंदर खुदा दी आत्मा ईगो नूं मारन वास्ते साडे अंदर हम्बलनेस पैदा कर दी है, लेकिन साडी सोचां उस हम्बलनेस नूं दूर करन दी कोशिश कर दियां ने। एलिया खुदा दी राह दी मुनादी करदा सानू नजर आंदा है। साडे अंदर कदी कदी ख्याल पैदा होंदा है कि खुदा दी राह दे उत्ते चलिए, लेकिन साडे अंदर ए रूह ऐसी तरह मौजूद है, आत्मा जड़ी सानू दुनियावी सिस्टम दे उत्ते ले जांदी है, दुनियावी कानून दे उत्ते, दुनियावी कानून दी पासदारी, ना कि खुदा दे कलाम दी। एक आत्मा जड़ी है आज कलीसियावां दे हर शख्स दे अंदर सानू नजर आ रही है, लेकिन सानू एनू कंट्रोल करन दी जरूरत है। आज साडी कलीसियावां जड़ियां ने एक दूजे तो जेलसी और ईगो दे अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव ने, और मुकाशफा रेवलेशन दे विच इसी देखा खुदा कहंदा है कि मैं तेरे कम्मां नू जानना कि तू बड़ी एक्टिव चर्च है,
ਤੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਖਿਦਮਤ ਔਰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। तेरे अंदर अना है, तेरे अंदर ईगो है, सेल्फ प्रेस है। मेरे भैनों ते भाइयों, आज खुदा दा कलाम सानू ये दसदा है, खुदा दा वचन दसदा है कि सानू अपने अंदरों ईगो, जेलसी, सेल्फ प्रेस, खुदी नू दूर करना है। साडे पाक मसीहा यसु मसीह ने क्या है कि जो अपनी खुदी दा सेल्फ ईगो दा इनकार नहीं करदा, वो मेरे लायक नहीं, वो मेरे पीछे आ नहीं सकदा। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੰਬਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੰਬਲ ਹੋਈਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਏ। यूहन्ना दी अंजील दे 14 बाब दे विच चैप्टर 14 दे विच यसु मसीह ने जदों अपने शागिर्दां नूं तालीम दित्ती कि मैं बाप दे विच हां और मैं उहदी तालीम दे रहा, ते लिखिया बड़े उहदे 12 नहीं सन चेले, उहदे बेशुमार चेले सन, ते लिखिया कि बड़े चेले उहदे उहनूं छड्ड के चले गए क्योंकि अपनी ईगो तो आजाद नहीं होना चाहते सन, अपनी मैं नूं नहीं मारना चाहते सन, इसलिए कि वो इस रूह दे कब्जे च सन। ते यसु मसीह ने 12 चेलियां नूं भी कहा कि तुसी भी चले जाना चाहते हो। उन्होंने कहा खुदावंद हमेशा दी जिंदगी, हमेशा दे जीवन दी गल्लां ते तेरे कोल ने, इसी किथे जाइए। याद रखो, अगर कलाम विच लिखा अगर तू भला करेगा तो क्या मकबूल ना होगा, खुदा सानू कबूल करेगा। लेकिन जरूरत है कि इसी भलाई दे कुलसियों उदे दूसरे बाब दे विच लिखा है कि हर एक घुटना, खा वो आसमानियों का हो, खा फिलिपियों उदे दूजे बाब विच दूजे चैप्टर विच, खा वो जमीनियों का हो, खा जमीन से नीचे वालों को, यीशु मसीह के आगे झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद है। अगर आज तुसी इकरार करते हो, तुसी इस रूह तो बच सकते हो। कलाम कहता है इस रूह तो बचने की जरूरत है। इहदा मुकाबला नहीं करना, इहदे तो बचना है। मुकाबला उदा किया जाता है जिहदे बारे च असीं समझने आ कि असीं ताकतवर हां, इसी कारण नाल इसी जिस्म सानू खुदा दी आत्मा दी जरूरत है इहदा मुकाबला करन वास्ते, इहदे तो बचण वास्ते। ते अज दा तुहानू इह वचन जिहड़ा है यही तालीम दे रहा है कि सानू अपनी कलीसियावां दे विचों ईजबल दी रूह नूं, अपनी सोच, अपने जहन, अपने अंदरों ईजबल दी रूह नूं कढण दी जरूरत है। खुदावंद तुहानू बरकत देवे। जी आगे क्या करना जी मैनू नहीं पता आगे फर्दर की तुसी दसो अगे प्रेयर करनी है या की सिलसिला है। हाँ जी, तुसी जो भी तुसी प्रीच कीता है अनुसार तुसी भैन भरावां लई दुआ कर सकते हो। हाँ जी जरूर, ठीक है। इसी अपने सारे नूं झुकावांगे। मैं तुहानू सारियां नूं देख रहा, तुसी खूबसूरत लोग, खुदा दे मुहब्बत दे विच सरशार लोग सारे मौजूद हो। खुदावंद तुहानू बहुत ज्यादा बरकत देना लाए। इसी अपनी अखां नूं बंद करांगे। मैं चाहना कि हर एक अख जिन्होंने मैं दे कैमरे दे विच वेख रहा, दूजे फोन दे विच मैं तुहानू सारियां नूं वेख रहा, तुसी सारे अपनी अखां बंद करोगे। अगर किसी की कोई जरूरत है, किसी नूं चाहिए है, किसी नूं कोई डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम है, किसी ने कोई जॉब की प्रॉब्लम है, किसी ने कोई बीमारी है, किसी ने कोई खानदानी प्रॉब्लम है, किसी की कोई बैक होम प्रॉब्लम है, मैं चाहना कि जिन्होंने इस चीज की जरूरत है अपना हाथ खड़ा करन। मैं तुहानू वेख रहा वां, तुसी अपने हाथ खड़े कर सकते हो जिन्होंने जरूरत है कि उहदे वास्ते प्रेयर की जाए। शाबाश मेरी भैन, शाबाश मेरे भाई, वेल डन। तुसी जिन्होंने हाथ खड़े किए ने, मैं चाहना तुसी अपनी जगह तो अगे आ जाओ, फ्रंट ते आओ ताकि मैनू कैमरे च सारे नजर आ सको जी। हाँ जी बिल्कुल, तुसी जड़े चाहते हो तुहाडे वास्ते मैनू नहीं पता, लेकिन खुदा दी पाक आत्मा नू पता है तुहाडी की जरूरत है। खुदा दी पाक आत्मा जानदी है कि तुहाडे खानदान विच की मसला है। खुदा दी पाक आत्मा जानदी है तुहानू अपनी आत्मा दे अंदर किस आशीष दी जरूरत है। खुदा दी आत्मा जानदी है कि तुहानू अपने खानदाना दे विच, अपने कारोबार दे विच, अपने माली फाइनेंशियल इश्यूज दे विच किस चीज दी जरूरत है। और खुदा दी आत्मा जानदी है कि तुहानू जिस्मानी तौर
तौर पे किस शिफा दी किस हीलिंग दी जरूरत है, ए ना मैं जानना ना कोई इंसान जानदा है। या तो इंसान दी खुद रूह जानदी है, आत्मा जानदी है, या खुदा दी आत्मा। और खुदा दी आत्मा तो कुछ भी छुपिया नहीं। खुदा दा वचन सानू याद करांदा है कि खुदा दी आत्मा छुपी गल्लां नू भी जान लैंदी है। ओ खुदा दी आत्मा जानदी है कि मेरे भाई मेरी भैन तेनू किस चीज दी जरूरत है, तेरी की जरूरत है। आज पूरे दिल दे नाल अपने आप नू खुदा दे सामने रख दे, आज अपने आप नू खुदा दे सामने खोल दे। ओ इत्थे मौजूद है। हालेलुया। जलाल कमाल हशमत और बुजुर्गी दे बादशाह यसू दे विच साडे अजीम पवित्र पिता, मैं मसीह यसू दे पवित्र नाम दे नाल तेरी हजूरी च आना वा। और ए पाक यहोवा, ए पाक खुदा आसमानी पिता, मैं नहीं जानदा लेकिन तू जानदा है मेरे इस भाई दी, मेरे इस भैन दी, इस खानदान दी, इस कलीसिया दी, ए इन्ने जेड़े लोग इत्थे अपने हाथ अगे करके तेरी पाक आत्मा दे सामने खड़े ने। वह पाक पवित्र पिता तू जानदा है इन्हां दी की जरूरत है। लेकिन मैं तेरे उत्तम अख्तियार नू, मैं तेरे उत्तम कंट्रोल नू लेंदे होए, तेरा खादम होंदे होए, मैं तेरा खुदा प्रचार करन वाला होंदे होए इन्हां नू तेरे हजूरी च लेके आना, तेरे मज़बा दे सामने ले आना। ओ खुदा मैं तेरे पाक हजूरी दे सामने इन्हां लोकां नू याद करना। ऐ खुदा ऐ तेरे लोग ने, एक एक आत्मा तेरी है, तू इन्हां नू खुदा चुन लेता है। तू जानना इन्हां दी की जरूरत है। मैं इन्हां दे उत्ते हर तरह दी कर्स नू डांटना वा, रिब्यूक करना वा, और यसु मसीह दे पवित्र नाम दे नाल इन्हां दी जिंदगी दे विच आजादी और विक्ट्री दा ऐलान करना वा। मैं प्रचार करना वा और मैं इन्हां नू ए पाक यहोवा तेरे रूह दे अंदर खुदा बरकत और आशीष देना वा। इन्हां दे जिस्म दी सारी बीमारियां नू मैं यसु दे नाम तो कैंसल करना वा। मैं इन्हां दे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नू कैंसल करना वा। इन्हां दे डॉक्यूमेंट्स दी जो प्रॉब्लम्स है खुदा मैं उन्हें तेरे हजूर याद करना वा कि इन्हां दे डॉक्यूमेंट्स तेरे हजूर खुदा एक्टिव होके कंप्लीट होन और हर तरह दी रुकावट और हर तरह दी ऑब्स्टैकल्स जांदियां रहन। इन्हां दे खानदानां नू मैं खुदा तेरी हजूरी च याद करना। और खुदा जिन्हों अपने फैमिली प्रॉब्लम्स ने खुदा मैं उन्होंने याद करना। और तू खानदाना नू बहाल करन वाला और खानदाना नू खुदा एक्टिव करके खुदा बरकत देने वाला खुदा है। उन्होंने ब्लेस करने वाला खुदा है। मैं इन्हां दी फैमिलीज नू ब्लेस करना। और खुदा इस वक्त मैं तेरा खादम होंदे हुए खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह दे नां ते इस सारे खुदा हाउस ऑफ ग्लोरी पंजाबी चर्च दी एक जान नू खुदा तेरे हजूर बरकत देना। ये चर्च बददा जाए और खुदा तेरे नाम नू जलाल देंदा जाए। तेरी हजूरी च खुदा बहुत लोकां नू तेरी हजूरी च लियाण दा सबब ठहरे। खुदा इन्हां जितनी जाना ने बड़े आजादी दे नाल खुदा तेरे हजूर आके तेरे तो आशीष पाण दी खुदा कोशिश कीती है। मैं यसू मसीह नासरी दे नां ते इन्हां दी आशीष तेरे हजूर मंगना वा। और मैं हर तरह दी शैतान दी वेखी ते अनदेखी सारी तासीरां नू कैंसल करना, डांटना वा, झिड़कना वा और इन्हां दी जिंदगी विच बरकत नू, ब्लेसिंग नू जारी कर देना वा। यसू मसीह नासरी दे नां तो आमीन। Thank you, Pastor ji. Thank you. Thanks a lot for your time. जो भी आपने प्रचार किया बहुत अच्छा था।